राम राम। सो हमने लास्ट टाइम देखा था कि वहां पे एक कैसे जो धर्म है जो बैल रूप में और गाय जो धरती रूप में वो मिलते हैं और उनके बीच का वार्तालाप शुरुआत होता है। तो वो हम लोग इस सेशन में पढ़ना स्टार्ट करें, आज के डिस्कशन में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं। कि ऐसे ही क्यों पनिश कर दिया कली को, क्योंकि वो गाय को बैल को मार रहा था, उनको बड़ा पनिशमेंट देना चाहिए था। तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऐसे सिर्फ इतना छोटा सा पनिश करके क्यों छोड़ दिया करके। सो वी आर ऑन दिस पेज। रोहित, अभी भी पढ़ सकते हो कि यू आर ऑलरेडी आउट? It's okay. I will read proposition my ठीक है, best. ठीक है, जय। Yeah, Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter number 16. Dharma in the form of bull asks, Madam, are you not hale and hearty? Why are you covered with the shadows of grief? It's appear by your face that you have become a black. Are you suffering from some internal disease or are you thinking of some relatives who is away in distant place? 19. I have lost my three legs and am I now standing on one only. Are you lamenting for my state of existence, or are you in great anxiety because henceforward the unlawful meat eater will exploit you? Or are you in a sorry plight because the demigods are now bereft of their share of sacrificial offering because no sacrifices are being performed at the present? Or are you grieving for living being because of their suffering due to the famine and drought? 20. Are you feeling compulsions for the unhappy women and children who are left forlorn by unscrupulous person? Or are you unhappy because the goddess of learning is being handled by Brahmanas, addicted to act against the principle of religion? Or are you sorry to see that the Brahmanas have taken shelter of administrative families that do not respect Brahminical culture? 21. The so-called administrative are now belittled by the influence of this age of Kali, and thus they have put all state affair into the disorders. Are you now lamenting these disorders? Now the general populace does not follow the rules and regulations for eating, sleeping, drinking, mating, etc., and they are inclined to perform such anywhere and everywhere. Are you unhappy because of this? 22. O Mother Earth, the Supreme Personality of Godhead, Hari incarnated himself as a Lord Sri Krishna just to upload your heavy burdens. All his activities are transcendental and they cement the path of liberations. You are now bereft of his presence. You are probably now thinking of those activities and feeling sorry in this absence. 23. Mother, you are the reservoir of all riches. Please inform me of the root cause of your tribulations by which you have been reduced to such a weak state. I think that the powerful influence of time, which conquered the most powerful, might have possibly taken away all your fortune, which was adored by even by the demigods. 24. Hare Krishna. यहाँ पे जो धर्म है उनके पर्सपेक्टिव से, धर्म के पर्सपेक्टिव से he is giving different reasons कि धरती कब she feels tormented or when she is unhappy. So these are the different understandings कि ऐसे सिचुएशन में धरती को बोलते हैं जब धरती माँ रो रही है, जब ऐसे हम लोग डायलॉग मारते हैं. So these as per Shastra these are the reasons, possible reasons or key reasons that when it is basically Mother Earth is lamenting. और वन ऑफ दिस रीजन इज अपना वर्णाश्रम भी हिल जाता है. सो दैट वर्णाश्रम वाज सपोज वो ह्यूमन काइंड के लिए भगवान ने बनाया. इट इज नॉट समथिंग दैट मैन मेड, इट वाज मेड बाय द लॉर्ड. और वो पूरा सारा जो सिस्टम है प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर और प्रॉपर इन प्लेस रखने के लिए किया था. सो व्हेन दैट इज डिसरप्टेड, व्हेन द पीपल फॉलोइंग दैट वर्णाश्रम और व्हेन द वर्णाश्रम इज स्टॉप बीइंग फॉलोड, दे गेट करप्टेड. तो that affects ultimately mother earth and even the civilization. तो ब्राह्मणस के बारे में बोले कि ब्राह्मणस अगर ब्राह्मण जैसे हरकत नहीं करेंगे then she becomes unhappy and for kshatriyas as well. So अगर आज की सिचुएशन देखेंगे तो वर्णाश्रम ऐसे what we say religiously फॉलो नहीं होता है.
अननोइंगली फॉलो होता ही है, बिकॉज दैट इज नेचुरल, दैट इज हाउ कृष्णा इज डिवाइडेड, सो उसको हम लोग अवॉइड ही नहीं कर सकते. सो वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, वी हैव फिलोसोफर्स, वी हैव सम बिजनेस क्लास, वी हैव पीपल हु वर्क एज लेबर. तो बाय डिफॉल्ट वो क्लास बना हुआ है, कोई उसको फॉलो करे ना करे, दैट इज बाय नेचर. बट दिस पीपल आर जस्ट एज पर देयर व्हाट यू से karma, that is as per their occupation, but it is not as per their guna. So unfortunately, uh, जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वर्णाश्रम के से ह्यूमन सिविलाइजेशन पे, दैट इज मिसिंग. एंड दैट व्हाट एंड धर्मा वही पूछ रहा है धरती माँ को कि इज दैट वाई, बिकॉज इज दैट द रीजन वाई यू आर अपसेट. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन व्हाट इज आस्किंग इज, कृष्णा चले गए इसलिए बुरा लग रहा है क्या? सो प्रभुपाद हैज गिवन इन द परपट गुड रीजन व्हाई धरती को इतना बुरा क्यों लग रहा है. सो व्हाट मे द पॉसिबल रीजन. सो लेट्स गो थ्रू सम ऑफ द परपट्स जो की पॉइंट्स है प्रभुपाद के. तो 20th वर्ष में प्रभुपाद कहते हैं कि with the progress of age of Kali, four things particularly, namely the duration of life, the mercy, the power of recollection, मतलब अपना memory, and the moral or righteous principles will gradually diminish. ये हम लोग देख ही रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ कम होते जा रहा है. बैठे बैठे अभी 32 इज बिकम वेरी कॉमन. पहले जब मैं कुछ साल पहले जब मैं छोटा था, आई मीन कॉलेज टाइम्स एंड ऑल, रेयरली आई वुड हियर एनीवन सेइंग दैट अरे 30 साल का, 35 इयर्स का, 40 इयर्स के बंदे को हार्ट अटैक से मर गया. नाउ इट हैज बिकम वेरी कॉमन टॉक. ऑफिस में बैठे बैठे लोग कोलैप्स हो रहे हैं. इट हैज बिकम वेरी कॉमन साइट नाउ इट इज. And this is just the start. This would become a norm going ahead, unfortunately. So duration of life कम हो जाता है, लोगों को मर्सी नहीं दूसरे पे. That is what we see. We have already seen that. मेमोरी तो सबसे बकवास है. मुझे खुद याद नहीं रहता कि कल क्या किया था, यही टाइम में मुझे याद नहीं है आज क्या, मतलब पहले का तो छोड़ दो. और पहले लोग कैसे थे, ऑल दी शास्त्रास दे यूज्ड टू रिमेम्बर सेड वंस, एक बार बात करने से उनके मेमोरी में वो रजिस्टर हो जाता था. अभी यही श्लोका 10 बार करने के बाद अगर 1 महीने के बाद मुझे पूछो कि मैं श्लोका भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं रहेगा. सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. वो कम होते जाते हैं. एंड ऑब्वियसली राइटियस में मोरल वैल्यूज तो कली का एक प्राइमरी इफेक्ट है, सो वो कम हो जाता है. So there are gradations of human beings in terms of proportional faith in the supreme personality of Godhead. The first class faithful men are the Vaishnavas and the Brahmanas, then the Kshatriyas and the Vaishyas, then the Shudras, then the Malechas, the Yavanas, and at last the Chandalas. So ये जो है मलेचा, यवना, चंडाल, ये अपने वर्णाश्रम के भी बाहर है. सो वन इज गुण कर्म, जहाँ पे ये क्लास डिवाइड होता है गुण कर्म के हिसाब से. प्रभुपाद हैज गिवन वन मोर ब्यूटीफुल डेफिनेशन, दैट इज एज पर योर फेथ इन सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड, एंड दैट इज ट्रू. तो क्योंकि ब्राह्मण जो है वो शास्त्र ज्यादा पढ़ते रहते कंटिन्यूसली, सो देयर फेथ इन द लॉर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, whereas शूद्रास आर जस्ट सर्विंग देम. तो शूद्र सिर्फ सर्व करते हैं इन लोगों को, तो उनका फेथ बाय डिफॉल्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता है. बट इट हैविंग सेड दैट, वो काफी अच्छा फेथ डेवलप करके दे कैन मूव टू द क्लास ऑफ ब्राह्मणस. दैट इज वेरी मच पॉसिबल. बट इन अदर क्लास, मलेचास, यवनस एंड चंडालस, वो लोग ये वर्णाश्रम के भी बाहर रहते हैं. सो यूजुअली इट इज सेड दैट आई हर्ड समवेयर समवन सेइंग दैट ये जो क्लास है यहाँ पे जो लोग थे, ये लोग दे वर नॉट इवन अलाउड टू स्टे इन द सिटी. दे वर मीट ईटर्स, डॉग ईटर्स. तो उसकी वजह से जो प्रोबा डॉग ईटर्स बोलते हैं, तो दीज आर द पीपल दे यूज्ड टू ईट द फ्लैश ऑफ डॉग्स, दे ईट मीट. और पहले गांवों में अपने अपने यहाँ पे वैदिक कल्चर जहाँ पे फॉलो हुआ करता था, मोस्ट ऑफ द विलेजेस में वहाँ पे मीट ईटिंग होता नहीं था. सो अगर अगर वो काली का भी कहाँ पे पूजा होता रहेगा और कोई सेक्रीफाइस हुआ रहेगा, कोई खाना है, देन दे हैव टू गो आउट ऑफ द विलेज बाउंड्री एंड देन वहां पे जाके उनको खा के आना है, गाँव में नहीं. अरे दैट वाज द रीजन व्हाई अर्लियर टाइम पे जो मर्ड हम लोग ये करते थे, टॉयलेट्स थे हमारे गाँव में नहीं हुआ करते. दे यूज्ड टू बी आउटसाइड द विलेज बाउंड्री, बिकॉज विलेज वॉज कंसिडर, जैसे हम लोग अभी घर को अभी हम लोग नहीं कंसिडर करते, बट घर को भी जब हम लोग कृष्णा का घर या कृष्णा का टेम्पल जैसा हम लोग कंसिडर करते, पहले लोग इतना कृष्णा कॉन्शियस थे या फिर इतना वर्शिप ऐसा करते थे, पायस थे, कि पूरा गांव का जो आइडियोलॉजी सेम हुआ करता है, एंड दे यूज्ड टू कंसिडर दिस विलेज एज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड. और इसलिए इसने मल भी मलमूत्र भी जो छोड़ना था, दे यूज्ड टू डू इट आउटसाइड द विलेज.
That was the only reason why they used to do that. ऐसे नहीं कि इतना सारा उनका ड्रेनेज सिस्टम सारा परफेक्ट है. वी कैन सी इट फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन विच इज लाइक 8,000 10,000 years old. तो वहां पे उनका जो सिस्टम था जो ड्रेनेज का, दैट वाज वंडरफुल. अभी भी वो सिस्टम इतना सिस्टमेटिक सब जगह पे दिखता नहीं है. उस टाइम था 10,000 साल पहले. तो वो सिस्टम उन्होंने वो टाइम किया था. तो उनके लिए टॉयलेट बाथरूम करना उनके लिए बड़ा चीज नहीं था. बट द रीजन दे डिड इज बिकॉज उनको मर्ल गांव में रखना नहीं था, बिकॉज दे कंसिडर्ड दिस विलेज एज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड. तो मलेचास और जो डॉग इटर्स उनको यूजुअली गांव के बाहर ही भेजते थे. द डिग्रेडेशन ऑफ द ह्यूमन इंस्टिंक्ट becomes from mlechas, and the Chandala state of life is the last word in the human degradation. All the above mentioned in Vedic literature are never meant for any particular community or birth. So Prabhupada makes it very clear. It is not as per birth nor as per community जो अभी follow होता है. They are different qualifications of human being in general. There is no question of birthright or community. मैंने इधर पैदा, मेरा बाप ब्राह्मण इसलिए मैं ब्राह्मण is a nonsense thing. But तुम्हारा बाप ब्राह्मण है इसलिए you have more opportunity or you have got more probability to become a Brahmin if you follow that principles very seriously. So there is मतलब you have got the provision now. There are more chances of you becoming a Brahmin. That is the only logic. But that doesn't mean that you have become a Brahmin. Brahmin is not by birth or community. Very clear. सब जगह पे यही बात बार बार दोहरा जाता है. But unfortunately हम लोग ये समझते नहीं है. They are different qualification in general. They are birthright. So one can acquire the respective qualification by one's own effort, and thus the son of Vaishnav can become Malecha, or the son of Chandal can become more than a Brahman, all in terms of the association and intimate relationship with the Supreme Lord. And in ISKCON we see that, right? जो डीटी वर्शिप करते वी डू नॉट नो वो बाय बर्थ किस कौन से फैमिली में जन्म लिया, उसका कम्युनिटी क्या था, वो कोई शूद्र कास्ट में था या मलेचा चांडाल था. वी नेवर नो. आई मीन they have people they have come from outside in some from those places जहाँ पे एक्चुअली कुत्ते भी काटते हैं या फिर meat eating is very kind of it is kind of mandatory because of the cold reasons and all. तो वहां से आके भी now these people have been purified by the chanting of Harinam and now they are doing deity worship जो usually देखा. So this is the proper system जो हुआ करता था पहले, जहाँ पे your qualification, based on your qualification you are given some sevas or you become a brahmana. जैसे it was not as per your birth. This is a live example that we can see. The meat eaters are generally called malechas, but all meat eaters are not malechas. Those who accept meat in terms of scriptural injunction are not malechas, but those who accept meat without restriction are called malechas. Beef is forbidden in scriptures, and the bull and cows are offered special protection by the followers of Vedas. एक जगह प्रभुपाद बोलते हैं कि कौ जो है वो माँ जैसे और बैल जो है वो पिता जैसे. आई थिंक आगे शायद आ जाएगा. तो कौ बिकॉज शी गिव्स मिल्क एंड bull because जो food grains of farming करना है, then bull does it. So they have to be given special protection. They are like our father and mother. For the devotees, there is no need for performance of the prescribed sacrifice because the very life of devotee is a symbol of sacrifice. Prabhupada has said it very nicely. Let me read it once again. For the devotees, there is no need of performance of prescribed sacrifice because the very life of a devotee is a symbol of sacrifice. But the person who are engaged in fruitive activities for sense enjoyment must perform the prescribed sacrifice because that is only means to get free from the reaction of sins committed by the fruitive workers. जो बाकी इवन जो वैदिक फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स के हिसाब से रहते हैं उनको भी sacrifice करना जरूरी है. Sacrifice or something. Sacrifice doesn't always mean that animal sacrifice. Sacrifice can be यज्ञ और काफी सारी चीजें रहते हैं. अभी जैसे वैष्णव के केस में when you sacrifice, we sacrifice all the material things for the service to Krishna. जैसे कान में हम लोग जो सुनते हैं वो अनवांटेड मटेरियल चीजें सुनते हैं. हम लोग सिर्फ कृष्णा का नाम सुनते हैं. हम लोग जो मुंह से बात करते हैं कृष्णा के बारे में बात करते हैं. हम जो भी काम करते हैं कृष्णा के बारे में करते हैं. बाकी काम हम लोग छोड़ देते हैं. सो दैट इज एक्चुअली लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी इन वन सेंस. और अभी कलयुग में तो दिस इज एक्चुअली बिग ऑस्टेरिटी. वही लोगों को जमने इतना सिंपल होके भी. सो इट इज अ बिग ऑस्टेरिटी एक्चुअली देखा जाए तो इन वन सेंस कंसिडरिंग कलयुग. बट देन वंस पीपल
जब वो भक्ति भाव और जो कृष्ण प्रेम आ जाता है हृदय में, तो ये ऑस्टेरिटी ऑस्टर लगता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई नया पेरेंट रहेगा, जो नया बेबी रहेगा फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए वो काफी डिफिकल्ट होता है। इट इज लाइक ऑस्टेरिटी, वो काफी कुछ उनका सेक्रीफाइस लाइफ में, बट वो तो फेड अप भी हो जाते हैं, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे स्टार्ट लविंग देयर किड आफ्टर फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज, उनको ऑटोमेटिकली जो धीरे से प्यार आना स्टार्ट होता है। डे वन से होता नहीं, आई मीन वी बिकम हैप्पी, अच्छा लगता है, अच्छा है, खुद का बच्चा है, बट जो पेरेंटहुड और जो पेरेंट्स का प्यार रहता है, वो धीरे धीरे आता है। जब वी स्टार्ट, व्हेन वी कंटिन्यू सर्विंग दैट किड, तो वो धीरे धीरे प्यार बढ़ जाता है। एंड देन जब नेचुरल होते हैं, देन वी डोंट थिंक ऑल दोस थिंग्स ऑस्ट्रेरी, वी थिंक अरे ये मेरा, एज ए पेरेंट दिस इज व्हाट आई शुड डू, आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, वैसे वैसे लगता है। इट बिकम्स इजी फॉर अस, भले वही काम था, बट इट बिकम्स मोर इजी बिकॉज अभी अपना थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। बट दैट हैज हैपेंड बिकॉज यू हैव बीन सर्विंग द चाइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम without an expectation. And these principles applies to Krishna also. Krishna is like a newborn for us. हमें पता नहीं, हमें हमारा रिलेशन नहीं कृष्ण के साथ, so we should just serve him, just serve him. जितना opportunities मिलते हैं, we should just keep serving him. This is my Krishna, I should serve him. जो opportunity मिलते हैं, हम लोग को serve करते रहना चाहिए. And when we do that, there will be one time जो हम लोग को naturally आएगा, oh मुझे तभी वो ऑस्टेरिटी लगेगा ना, अरे मुझे कृष्णा के लिए करना है। फ्री टाइम हम लोग कृष्णा के लिए निकालेंगे, हम लोग फालतू की चीजें जो है हमें, मतलब बाकी चीजें जो हमें फालतू लगने स्टार्ट हो जाएंगे। वी विल बाय नेचर, इट इज नॉट कि अरे मुझे ऐसा करने बोला है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे सत्संग वालों कैसे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वैसे वैसा नहीं रहेगा। इट विल वेरी नेचुरल, नहीं मैं कर ही नहीं सकता यार, मुझे, मैं कृष्णा के बारे में छोड़ के बाकी सारी चीज कैसे कर सकता हूँ। सो दिस थिंग्स कम, आई मीन आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, या जो, बट दिस इज व्हाट हैपेंस स्लोली। सो सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है सर्व करने का, वी शुड कीप सर्विंग कृष्णा, नॉट ओनली बाहर, घर पे भी। एंड बुक रीडिंग इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सर्विस। गीता रीड करना या फिर जो बुक्स रीड करना, डीटी वर्शिप अगर कर रहे हो तो प्रसादम ऑफर कर, प्रसादम खाना, सो दिस स्मॉल थिंग्स, सत्संग अटेंड करना, सो दिस थिंग्स वी हैव टू डू, दिस इज अ सर्विस टू कृष्णा। उसके बाद स्लोली स्लोली हम लोग अभी जॉब करते, ये करते, धीरे बाकी सारे काम भी हम लोग धीरे धीरे उसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। So the very, that is why it is Prabhupada says the very life of devotee is a symbol of sacrifice. इसलिए उनको अलग सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली सब सेक्रीफाइस किसको आता है, कृष्णा को। एंड वैष्णव्स आर ऑलरेडी डूइंग दैट फॉर कृष्णा। ये भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में है। Sacrifice is the means for countering such accumulated sins. The demigod are pleased when such sacrifices are performed, just as a prison officers are satisfied when prisoners turn into obedient subject. Lord Chaitanya, however, has recommended only one yagya of sacrifice, that is the Sankirtan yagya. तो बाद में 21st में उन्होंने प्रभुपादा ने वापस कमेंट में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कही है। सो अगर ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कलियुगा व्हिच आर हार्मफुल फॉर द जनरल वारफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, सो प्रभुपादा आंसर्स दिस इन द परपट। In the age of Kali Yuga, the women and the children along with brahmanas and cows will be grossly neglected and left unprotected. हम लोग देख ही रहे, अभी ब्राह्मण प्रोटेक्शन का चीज है ही नहीं, देयर इज नो सिस्टम ऑफ दैट। उल्टा उनको मॉब लीचिंग और वैसे हम लोग सुनते हैं। In this age, illicit connection with women will render many women and children uncared for. Circumstantially, the woman will try to become independent of the protection of men, and marriage will be performed as a matter of formal agreement between the man and woman. ये पॉइंट पे बाद में आते हैं। In most cases, the children will not be taken care of properly. The Brahmanas are traditionally intelligent men, and thus they will be able to pick up modern education to the topmost rank. But as far as the moral and religious principles are concerned, they shall be most fallen. मतलब ब्राह्मण का जो ऑब्जेक्टिव वो कर नहीं पाएंगे, बट बिकॉज दे आर इंटेलेक्ट, वो शायद टॉप स्कोरर हो जाएंगे या फिर बाकी सारी चीजें हो जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली they will not be able to मोरल वैल्यूज एथिकेट्स, वो जो ब्राह्मण से एक्सपेक्टेड है वो कर नहीं पाएंगे। Education and bad character go ill together, but such things will run parallel because this education is unfortunately not spiritual education. पहले एजुकेशन क्या हुआ करता था, इट वाज मोरल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन सब इंक्लूडेड था along with material एजुकेशन। अभी के केस में ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट मटेरियल एजुकेशन। मोरल एथिक्स वगैरह स्टार्टिंग के कुछ
few grades पहले के कुछ grades में सिखाते, but then it does not continue with it. कुछ standard के बाद उसको बंद किया जाता है. But now in Kali Yuga they will run parallel, क्योंकि because education is not anyways related to your moral values. The administrative heads as a class will condemn the tenets of wisdom, Vedic wisdom, and will prefer to conduct a so-called secular state. And so-called educated Brahmins will be purchased by such unscrupulous administrators. So secular मतलब सब religions के ऊपर. Secular मतलब religions को Vedic religion does not have a primary role in defining the society. So ऐसे केस में क्या होता है? It will be degraded form. We will not live a Vedic style of human society. The administrators condemn. Even a philosopher and writer of many books on religious principles may also accept an exalted post in a government which denies all the moral codes of Shastras. The Brahmanas are specifically restricted from accepting such service. But in this age, they will not only accept service, but they will do so even if it is the meanest quality. So Brahmanas क्या होते? They were restricted on accepting such services. Salary भी लेते थे Brahmanas. They don't take salaries. So जब राजा के यहाँ पे वो रहते थे as an advisor, they never used to take salaries. Donations, fine, but not as salary. They were never salaried. लेकिन अभी के केस में there is नॉन सैलरी ऐसा फंडा चलता नहीं है. सो पीपल दे आर ऑलवेज मतलब सैलरी रहता ही है. वी कैन नॉट ब्लेम देम. दिस इज हाउ, बिकॉज देयर इज एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो ब्राह्मण्स के प्रोटेक्शन के लिए देयर इज नो फैसिलिटी, देयर इज नो प्रोविजन. तो उनको भी पेड भरना है. सो देयर इज नो ऑप्शन बट दे हैव टू लीव एवरीथिंग एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग समवेयर एज ए सैलरीड पर्सन, एंड दैट इज वेयर they lose their credibility as a brahmana. And any type of work they would do. पापी पेट का सवाल है. सो अनफॉर्चुनेटली कांट हेल्प. सो यहाँ पे एक पॉइंट प्रभुपाद ने बताया हुआ है. द वुमन विल ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ मैन. यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड. प्रभुपाद ने बोला ना कि वुमन इंडिपेंडेंट हो जाएगी. नो, दैट इज नॉट द पॉइंट. हम लोग जब बोलते हैं, जो हमारे शास्त्रों में पहले हुआ करता था वैदिक लाइफस्टाइल में, इट वाज अबाउट इंडिपेंडेंस एज रिलेटेड टू द as related to what you say protection. So people usually एक वर्स कोट करते हैं मनुस्मृति से, और मनुस्मृति से एक कोट वर्स करके एक वर्स कोट करके they kind to misinterpret it, and then मनुस्मृति को they point fingers at it. I have that verse in front of me right now. Let me read out. ता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थावीरे पुत्रः न स्त्रिय स्वतंत्र मर्हति. तो न स्त्रियां स्वतंत्र मर्हति, तो स्त्रियों को स्वतंत्र इंडिपेंडेंस नहीं है, ऐसा करके उस पे बोला जाता है. ये वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, और काफी उसके ऊपर काफी लोग पिन पॉइंट करते हैं, रॉन्ग मैसेज भेजते हैं. बट इफ यू सी कंटेक्चुअली, तो क्या है, दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ बोला, प्रोटेक्शन. इट इज, दे आर नॉट सेइंग कि वुमन को इंडिपेंडेंस नहीं है. सो हम लोग पूरा वर्ड्स कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो उस वर्ड्स का मतलब क्या है कि जब बेटी छोटी रहती है, लड़की छोटी रहती है, देन शी शुड बी इन द प्रोटेक्शन ऑफ द फादर. जब शादी होती है कौमार, मतलब कौमार रूट में, मैरिज के पहले फादर, बाद में यूथ में जाने के बाद हस्बैंड के प्रोटेक्शन में रहती है, और ओल्ड एज में सन्स के प्रोटेक्शन में रहती है. एंड अगर हम लोग ये अगर समझेंगे कि ये प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, इसका प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, इसका प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, तो अगर आप आगे जाके बोलेंगे एंड द वुमन डज नॉट डिजर्व इंडिपेंडेंस, इट डजंट मेक सेंस. इट डज नॉट लिंक. ये वर्ड्स लिंक नहीं होता है. जब उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए बोलते हैं, देन व्हाट द वर्स इज ट्राइंग टू से दैट दे नीड, ये पूरा पहला 3 लाइन प्रोटेक्शन के बारे में, विच मीन्स दे आर ट्राइंग टू से स्वतंत्र मीन्स दे शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट, दे शुड नॉट बी लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड. that is what they are trying to say. They should not be left unprotected. वो चैप्टर जो है, बेसिकली दैट चैप्टर इज अबाउट ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसा कुछ चैप्टर है, इफ आई रिकलेक्ट करेक्टली. तो उनमें बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ का क्या ड्यूटी है उसके बारे में बात किया गया है. एंड इट स्ट्रेसेस अबाउट हाउ हस्बैंड, फादर एंड ए चाइल्ड शुड प्रोटेक्ट द वुमन. दे नीड प्रोटेक्शन, और उनको प्रोटेक्ट करना. और एल्स वी सी दैट, राइट, इतने सारे केसेस होते हैं, मोलेस्टेशन का, रेप केसेस एंड ऑल. दिस इज अनफॉर्चुनेट जो होता है, दैट इज अनफॉर्चुनेट, दैट इज व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट.
जब हमारी बेटी है, बहन है, वी ऑलवेज, आई मीन चाइल्डहुड से भी हम लोग वही करते थे, राइट? वी यूज्ड टू प्रोटेक्ट अवर सिस्टर्स, वी यूज्ड टू प्रोटेक्ट अवर डॉटर, वी प्रोटेक्ट अवर डॉटर्स, हम लोग करते थे, राइट? दैट इज बट नेचुरल, और यही शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें प्रोटेक्शन करना है, उनका प्रोटेक्शन करना है, एंड दे शुड नेवर बी लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड, हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है उनको। And this is what this verse says. It is basically talking about the duty of a man and not the independence or something about the woman. So वो basically बोल रहा है क्योंकि पिता को करना है, पति को करना है, बेटे को करना है. So this basically they are talking about the male का duty क्या है towards woman. One of the duties. So one of the duties being protection, and hence this woman should not be left unprotected. This is what it says. Ki it does not say about not deserving independence. And Prabhupada has very rightly said this over here. Ki they should not be independent, or they should never be left unprotected. And this is what it is. So people have wrongly interpreted it, this particular verse, and they are kind of उसको गलत तरीके से पिन पॉइंट करने, मनुस्मृति को हमेशा की तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज आवर रूल बुक. सो मिस इंटरप्रिटेशन बहुत करते हैं, एंड देन दे पॉइंट आउट मनुस्मृति को, not in Manusmriti, any Vedic literature को they start pinpointing it, because unfortunately due to the low intelligence they are unable to understand this scripture properly, and that is why हमेशा बोला आता है स्क्रिप्चर्स गुरु से पढ़ना चाहिए, जो एक परंपरा के थ्रू है, नॉट एनी गुरु, जो परंपरा के थ्रू है, जो प्रैक्टिस करता है, समझता है, नॉलेज रखता है सही तरीके से, राइट पर्सपेक्टिव रखता है, एंड देन दे विल अंडरस्टैंड शास्त्रास. और शास्त्रास भगवद गीता के 150 के ऊपर अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग वेरिएशंस है, सो वी कैन अंडरस्टैंड. So then, on the 22nd verse, Prabhupada again says that they are talking about the lamenting and other things. So यहाँ पे प्रभुपादा यहाँ पे एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि जो कलयुग में जो बच्चे हैं उनका सिचुएशन कैसा है. बाकी तो हम लोग ब्राह्मण का सुन लिया, लेकिन बच्चों का क्या है. तो प्रभुपादा पर्पल में बताते हैं कि इन दिस एज पीपल आर इंडल्जिंग इन सच नेसेसिटीज ऑफ लाइफ without following the rules and regulations. And this deterioration of social and moral values is certainly lamentable because of the harmful effects of such beastly behavior. In this age, the fathers and the guardians are not happy with the behavior of their ward. They should know that so many innocent children are becoming victim of bad association avoided by the influence of the age of Kali. तो कली में बैड एसोसिएशन तो आता ही है पैकेज का, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट आवर किड्स आर बेसिकली दे डू नॉट फॉलो सम सोशल मोरल वैल्यूज, और वो गलत राह में चले जाते हैं. Prabhupada use the word innocent kids. So this is, they are influenced, basically they are innocent, they can be easily influenced. जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे रहते हैं वो क्ले जैसे, या फिर वो चपाती का डो रहता है, तो उस तरीके से रहता है आटा, तो उसको जैसे चाहे हम लोग शेप दे सकते हैं, दे आर इनोसेंट. तो इसलिए उनका एसोसिएशन मॉनिटर करना पेरेंट्स का, दे हैव टू वेरी केयरफुल विद दैट, दे हैव टू बी गिवन द राइट एसोसिएशन. डिवोटी का सत्संग वो सब देना जरूरी है. मैं देखता हूँ कुछ डिवोटीज यहाँ पे, देयर किड्स आर दे आर कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज बाहर जाके भी पढ़ रहे हैं, बट बिकॉज दे हैड बीन इन एसोसिएशन फॉर लॉन्ग टाइम, उनका जिस तरीके से वो अपने प्रिंसिपल्स को पकड़ के बैठे, इट इज रियली, आई मीन मैं और मेरी वाइफ हम लोग बात करते हैं कि इट इज रियली अनबिलीवेबल. क्योंकि हम लोग जब देखते हैं को बाहर आने का हॉस्टल में कैसे लोग किस तरह बिहेव करते हैं, इट इज वेरी इजी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड. और बिकॉज दे हैड बीन, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवोटी एसोसिएशन, पास डिवोटी एसोसिएशन, और वो चैंटिंग करते हैं, वो लोग बुक्स पढ़ते हैं, दे आर काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड, और वो एसोसिएशन में पढ़ते हैं, भले उनके फ्रेंड सर्कल वैसा रहा, फिर भी they are not getting too much influenced by that. So which is very interesting, and this is live example that we are seeing. आप लोगों ने भी देखा रहेगा, this is very live example that we are seeing. They should know that how many innocent children bad association. We know from Srimad Bhagavatam that Ajamila, an innocent son of Brahman, was walking down the road and saw a Shudra pair sexually embracing. This attracted the boy, and later on the boy became a victim of debaucheries. अभी सिर्फ एक बार उसने देखा, एक झलक देखा था, सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ एक झलक देखा था, और वो झलक देखते ही वो पूरा एक झलक से डिग्रेड हो गया था. This attracted the boy, and later on the boy became a victim of debaucheries. From a pure Brahman, he fell down to the position of wretch Arshin, and it was all due to bad association. उनके साथ रहा भी नसीब देखा.
Prabhupada now makes an interesting one. He says there was but one victim like Ajamila in those days. ऐसा नहीं है कि ऐसे हुआ करते, यूजुअली हम लोग बोलते रहे अरे देख शास्त्रों में ऐसा एग्जांपल है, ये तो बहुत कॉमन था। एक एग्जांपल देने से कॉमन नहीं होता है। कहीं पे भी शास्त्रों ने जब तक बोला है दिस वाज अ कॉमन साइट, डजंट मीन दैट वी कैन नॉट एज्यूम दैट इट इज कॉमन जस्ट एक एग्जांपल देने से। So this was, Prabhupada says, makes it clear this was one of the very few rare cases that would happen. But in this age of Kali, the poor innocent children are daily victims of cinemas which attract men only for sex indulgence. This is very sad, right? तो ये काफी adult content porn industry हम लोग देखते हैं, it has become very common sight. There is some statistics जो मैं थोड़ा चेक कर रहा था रिसर्च, एंड आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर हियर। मैंने उसके सोर्स भी लिखे। सो फोर्ब्स में 2001 में, आई एम नॉट टॉकिंग नाउ, आई एम टॉकिंग 20 इयर्स बैक, मोर देन 20 इयर्स, 21 इयर्स। सो फोर्ब्स मैगजीन ने बताया था कि जो पोर्नोग्राफी है वर्ल्ड वाइड 56 बिलियन का उनका ये है रेवेन्यू, 56 बिलियन। एंड 2008 में एस्टिमेट कितना आएगा, 100 बिलियन तक आएगा, उनका एस्टिमेशन था 100 बिलियन तक जाएगा। वी आर इन 2022 एंड 13 बिलियन अलोन इन यूएस अलोन। ये नंबर समझने के लिए वो ऑथर ने कुछ पर्सपेक्टिव दिया है। मतलब एप्पल जो है उसने प्रॉफिट, ये जो उसका प्रॉफिट है 11.6 बिलियन है 2012 में, 11.6 बिलियन का प्रॉफिट है उसका। जनरल मोटर्स ने 2011 में 6.1 बिलियन कमाया था और फोर्ब्स ने 7 बिलियन कमाया था। और 2009 में द वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट इवेंट, मतलब सब टिकेटिंग मीडिया सब पकड़ के 64 बिलियन था। इतना सब पकड़ गया, उसमें प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ नेट रेवेन्यू है, मतलब उसमें प्रॉफिट वगैरह कुछ डाला, टोटल रेवेन्यू है, सॉरी नेट रेवेन्यू नहीं, टोटल रेवेन्यू है। लेकिन पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री का अकेले का प्रॉफिट 56 बिलियन था वर्ल्ड वाइड। वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड ये इंडस्ट्री कितना बड़ा है। अलग पर्सपेक्टिव, अलग स्टैटिस्टिक्स, अलग सोर्स से लिया हुआ। पीपल एडिक्टेड टू पॉर्न, ये भी अगेन दिस इज नॉट द स्टेटिस्टिक लेटेस्ट वन, दिस इज अगेन सम 10 years back. People addicted to porn spend at least 11 to 12 hours every week viewing porn. Most people have porn addiction say that the porn hurts their personal relationship. जैसे बाकी शराब बिराब एडिक्शन से पर्सनल रिलेशन से इफेक्ट होता है, इवन पॉर्न एडिक्शन impacts their personal relationship. Many conditions co-occur with porn addiction, including anxiety, depression, sex addiction, social anxiety, and substance use disorders. ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, उनका मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी उनका डिग्रेड हो जाता है, ऑलरेडी डिग्रेडेड है, लेकिन पॉर्न करने से उनका मेमोरी का और डिग्रेड हो जाता है। और उसकी इंटेलिजेंस में और भी कम। प्रोबादा कहते हैं कि जो स्पर्म है अगर वो हम लोग लूज करते जाएंगे, देन इट अफेक्ट्स इट बेसिकली व्हेन वी रिटेन दैट इट अफेक्ट्स अवर इट हेल्प्स अस इन हेल्प्स ऑन योर मेमोरी। और ये इसलिए हम लोग देखेंगे ब्रह्मचारी जो फॉलो करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रह्मचारी फॉलो करना, बिकॉज इट रिटेन्स दोस रिटेन स्पर्म्स। उसको कुछ नाम है संस्कृत में, which basically kind of says that it is a critical substance in the body and should not be just wasted. तो वो जब रखते हैं then it actually helps in what you say increasing your memory, and Prabhupada said in different purpose as well. और यहाँ पे भी वही बोलता है। So इस वेबसाइट के अलग जगह पे मेमोरी का उसका मेमोरी उसका वीक हो जाएगा, ये सारी चीजें वहां पे कॉल आउट किया वेरी स्पेसिफिकली, साइंस खुद बोलता है। और ये सिर्फ एडिक्शन से, व्हेन यू गेट इंडल्ज तो और उससे इम्पैक्ट हो जाता है। सो अराउंड 35% ऑफ ऑल इंटरनेट डाउनलोड्स आर पोर्नोग्राफिक, विच इज ह्यूज। 35% इज ह्यूज। हमारे कितने मिलियन, और अभी तो बढ़ गया रहेगा, विच इज वेरी ह्यूज 35%। एज द इंटरनेट ग्रोज एक्सपोनेंशियली द अमाउंट ऑफ पोर्न ऑन द इंटरनेट इंक्रीजेस एज वेल। ये 10 साल पहले है, उसके बाद से जो हमारा और इंटरनेट बढ़ा हुआ है, और कोविड के टाइम पे जो वापस जिस तरह से हम लोग इंटरनेट और टेक से भी बन गए, it has become even more easier. See, the idea here is the content quantity is not to be worried. I mean, it is still a point to be worried, but usse zyada worrisome is basically this content are easy, the ease of availability of this content is even more worryable. ये easily available है,
ऐसे नहीं कि बहुत मतलब ऐसा कोई भी बच्चा जिसको नेट यूज करने आता है, गूगल यूज करने आता है, they can look up for it and they can find it, and that is even more worrisome. For 40 million US adults 10 साल पहले regularly visit internet pornography websites, which is huge. और ये अनकंट्रोलेबल होने की वजह से इट इज सेड दैट 20% men and 13% women even during work they access porn websites. And I have seen in my previous jobs as well. मैंने ऐसे 2-3 केसेस देखे थे जहाँ पे लोगों को निकाला गया था because they were caught watching porns during office night shift में वगैरह. ये जिनको पकड़ा था उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो नहीं पकड़े उनके नंबर्स और ज्यादा रहेंगे. So this is what the PT situation is right now. और इसलिए अभी अजामिल और भी काफी अजामिल है जो हम लोग ये कलयुग में हम लोग को दिखाई देता है. एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. सो दैट्स व्हाई दे हैव टू बी पेरेंटिंग. इन पेरेंटिंग में बच्चों के ऊपर निगरानी रखना काफी इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मैं बच्चों को फ्री रखता हूँ. आई हैड रेड समवेयर, एक लेडी बोलती है अरे मैं बच्चों को खुद डिसीजन करने देती हूँ. आई मीन द हाइट ऑफ अलाउइंग किड्स टू मेक डिसीजन इज. एक बार वो और उसके पति ड्रिंक्स ले रहे थे तो बच्चा के बोला मुझे क्या है, मुझे भी चेक करना है. तो वो लेडी ने बोला अरे पियो ना, चेक करो. बिकॉज वो बोलते कि बिकॉज आई वांटेड माय चाइल्ड टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन. क्या डिसीजन है उसको लेना देना नहीं है. और बच्चे को, छोटे बच्चे को, 10 साल से छोटे बच्चे को उसने शराब का गुट पिलाया और ऑब्वियसली वो कड़वा रहता है. बच्चे ने उस वक्त छोड़ दिया था. बट ये बच्चा आगे जाके पिएगा नहीं, उसका गारंटी ही वो पिएगा. कड़वा उस वक्त था, वो ऐसा नहीं वो इंप्रेशन, कड़वे का इंप्रेशन लेके आगे जाके वो, जब हम लोग बच्चे रहते हैं वो दवाई लेने के लिए कितना हम लोग ड्रामा करते हैं, वही दवाई हम लोग अभी एकदम आराम से लेते हैं. सेम सेम प्रिंसिपल. उस वक्त उसको कड़वा लगा लेकिन आगे जाके उसको लगा अरे मेरी माँ तो मेरे को बोला था, उसने रेस्ट्रिक्शन तो बोला नहीं था कि मत पियो, टेस्ट करो और टेक योर डिसीजन. तो बस इट इज माय चॉइस. एंड देन दे गो इन दिस रॉन्ग थिंग. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड जब हम लोग बच्चों के इंडिपेंडेंट बनाते हैं, इट इज नॉट अबाउट गलत डायरेक्शन में भी इंडिपेंडेंट बनाना है. इट इज अबाउट बेसिकली कुछ लाइफ के डिसीजन लेने के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे को चार्टेड अकाउंट बनना है, उसको इंजीनियर में जाना है. सो दोज डिसीजंस वी हैव टू हेल्प देम अंडरस्टैंड. ऐसे नहीं उसने मुझे बोला ठीक है चल कर, नहीं, वी हैव टू डिस्कस विद हिम उसने कौन से बेसिस पे किया है. बिकॉज फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी हैव सीन दैट जैसे हम लोग हर स्टैंडर्ड में आते हैं, हम लोग पुलिस से लेके मिलिट्री से लेके हम लोग सब कुछ बनना चाहते हैं. सो आवर डिसीजन मेकिंग इज स्टिल रॉ. हम लोग के पास उतना डेटा पॉइंट्स नहीं है डिसीजन लेने के लिए. हम लोग से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं, विच इज ओके. we can make that, but then we have to substantiate. जो जब हमारे parents, we as parents, then we have to sit with the child and then understand कि कैसे है क्या है. Have you thought something जब तू ये stream ले रहा है, have you thought something तो आगे जाके क्या करेगा? Because this is where you are basically trying to plan it as per what job और क्या करियर लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो. होगा नहीं होगा अलग स्टोरी, बट वो प्लान है तुम्हारे दिमाग में क्या है, किस तरह सोचा है वो. तो वो जब हम लोग डिस्कस करते हैं एंड डिस्कस करके हम लोग जब still the child is says कि हाँ, and we are also okay with that, may not be satisfied but even still we are okay, ठीक है चल, then we give that freedom to them. So this is what independence is. It doesn't mean कि अरे छोड़ दिया दारू पीना, बिंदास इंडिपेंडेंट रहो, जो करना करो, मैं पूरा इंडिपेंडेंट मेरे बच्चे को दे रहा हूँ. I am like a modern. This is not called modern, this is called foolish. So this is what it is and we have to basically take care of it. दरवाजा बंद करके बच्चे बंद करके बैठते अंदर रूम में, क्या होता है किसी को पता नहीं रहता है. सम पेरेंट्स से कि नो दे हैव टू ग्रो अप. वो लोग वेस्टर्न कुछ कंट्रीज को फॉलो करते हैं जहाँ पे ऐसा होता है. 18 साल में बच्चों को माँ बाप छोड़ देते हैं, उनको लगता है बॉस ये सही है, बट दिस इज नॉट इट इज. हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन देखेंगे और अभी हमारे देखेंगे, अभी की सिचुएशन में भी पेरेंट्स और बच्चे साथ में रहते हैं और साथ में न रहते भी उनका जो बॉन्डिंग है इट इज रियली गुड. हम लोग अभी भी माँ बाप को मॉम डैड या फिर आई बाबा करके बुलाते हैं, बट वहां पे मिस्टर स्मिथ ऐसा सब उनको बुलाया जाता है. उनका वेरी फॉर्मल रिलेशन, अपॉइंटमेंट लेके माँ बाप को मिलना पड़ता है. दिस इज सो अनफॉर्चुनेट. ऐसे रिलेशन, उसको रिलेशनशिप नहीं बोलते, वो बिजनेस जैसा हो गया. इट इज जस्ट एक्विटेंस जैसा हो गया. इट इज नॉट ए गुड रिलेशन. सो इसलिए उनको फॉलो करेंगे तो उनके जैसे बन जाएंगे एंड विच अनफॉर्चुनेटली डोंट वांट. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं वैसा फॉलो करने जाते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब रखते हैं कि मेरा कुछ हुआ तो मेरा बेटा मेरे को हेल्प करने आएगा, मेरी बेटी मेरे को हेल्प करने आएगी. But unfortunately, because you wanted that taste of Western culture under the guise of modernity, तुम लोग को जो मिलेगा उसका आउटपुट भी वैसे ही मिलेगा. Then you cannot creep about it. So this is what unfortunate state of Kali Yuga is. Parenting has become even more difficult
बिकॉज एसोसिएशन अभी सब जगह पे गलत है, पोस्टर से लेके क्लासेस, स्टडी के पोस्टर, क्लासेस पोस्टर में भी जो लेडी है टीचर करके दिखाती है व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट शर्ट में वगैरह, इवन इवन उनमें थोड़ा टिंज ऑफ सेक्सुअलिटी डाला रहता है अनफॉर्चुनेटली। सो दे मॉडल को वो लोग खड़े करते, दे डू दैट, आई मीन बिकॉज दैट अट्रैक्ट्स द आईज ऑफ द किड्स एंड द पेरेंट्स। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सब जगह पे बैनर बिनर सब जगह वही है। हम लोग ऑन करेंगे टीवी, एडवर्टाइजमेंट में, मूवीज में, सब जगह पे वही है, कार्टून्स में भी वही है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू एज ए पेरेंट, ये काफी काफी बड़ा कॉल है। एंड जैसे प्रभुवाद बोलते हैं, अभी तो सब जगह पे अजामिल बन रहे, पहले तो सिर्फ एक ही था ऐसे अजामिल, एंड इसलिए उसको शास्त्रों में नोट कोट किया गया था। बट अभी ऐसे बहुत सारे केस हर जगह पे, बहुत सारे, ऑलमोस्ट ऑल केसेस आर लाइक दैट। सो ओनली सॉल्यूशन फॉर अस इज एसोसिएशन। और जब बच्चों को हम लोग बचपन से ऐसे एसोसिएशन डालेंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं अरे इतना छोटा है यार, उसको क्या अभी ये सब इसमें कर रहा है करके, बट दिस इज व्हाई वी आर डूइंग, बिकॉज वी डोंट वांट अवर चाइल्ड टू, उसके मोरल वैल्यूज को हम लोग इम्पैक्ट नहीं करना चाहते। we don't want this, if it is son, we don't want that son to end up being a molester, या फिर गर्ल है, we don't want to be क्या बोलते हैं उसको, डिग्रेडेड पर्सनैलिटी वाला हम लोग बनाना नहीं चाहते। सो दिस इज व्हाट इट इज, दैट दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। जो धर्म भी है पृथ्वी को ये सारे रीजंस पूछता है कि ये सारी चीजों की वजह से हो रहा है क्या है करके। सो वी विल टेक ए पॉज हियर, और एक ही स्लाइड है जो हम लोग नेक्स्ट टाइम या फिर जब भी हम लोग बैठेंगे तब डिस्कस करेंगे। सो एनी क्वेश्चंस, any comments before I stop the recording? No, Santosh. Thank you, Rohit. Thank you. No, Prabhuji, thanks. Thank you, bro. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada.